زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت کم نام ہیں جن کو لے کر امیڈیٹلی آپ کے دل میں ایک کانفیڈنس بھی، ایک پرسنالٹی کا سامنے آتا ہے اور ایک رسپیکٹ. ان کا جو نام ہوتا ہے اٹ کمانڈز رسپیکٹ. اور میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خوبصورت اور خوبصیرت بلکہ آلسو ویری ویری ٹیلنٹڈ، ویری ویل ایجوکیٹڈ. ایک نہیں 2 پورٹ فولیوز انہوں نے سنبھالے ہیں، 2 منسٹریوں میں کام کیا ہے اور اپنا لوہا منوایا ہے تھرو ہر ورک. وی ول ویلکم ہنا ربانی کھر صاحبہ. ہنا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اینڈ آئی نو آپ بہت کم میڈیا کرتی ہیں اور آپ بہت ٹیسٹفل میڈیا کرتی ہیں. سو آئی گیو مائی سیلف سم کریڈٹ. سو آئی مین میں تو ہارٹ ٹاک کی پریپریشن کر کے آئی تھی، لیکن میں نے آپ کا ہارٹ ٹاک دیکھا اور میں نے سوچا کہ اچھا میں کیا کروں ایسا کہ ہنا ذرا تھوڑی سی بیک اینڈ پہ چلی جائے. لیکن سب سے پہلے ہنا، آپ کی education, you're very well educated, you have conducted yourself gracefully time and time again through the media. We have seen a very very positive Pakistani woman coming out, but you know یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت چھوٹی سی عمر میں 25 سال کی عمر میں آپ کو اتنی بڑی وزارت مل جاتی ہے. تو لوگوں نے بڑے سوال اٹھائے اور یہ ہمارے دماغ میں بھی آتا ہے کہ اس میں موروثی سیاست کا کتنا کردار ہوتا ہے. دیکھیے اٹ ڈیپینڈس آن ہاؤ یو ڈیفائن اٹ، بیکاز اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ کیا میری سیاست میں یا کیا میرے الیکشن لڑنے میں اور الیکشن جیتنے میں میرے والد کا ہاتھ ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر انہی کا ہاتھ ہے، دیٹس اباؤٹ اٹ. آئی کین ٹیک نو کریڈٹ فار انٹرنگ پالیٹکس، فار وننگ مائی الیکشن. دیٹ واز آن دا بیسس آف ہز پالیٹکس اینڈ ہز ہارڈ tedious work over the years. Acha, well, you know how you came in with that whole accidental Musharraf thing and the BA degree and all of that. So did you want to come in or were you made to come in? Okay, so hamari, as you may know, in our family, yes, we live around people in politics, and my father to since 1985 he won his first election, so twice MPA, twice minister, then twice MNA, etc. So we lived around this, we were comfortable with it. But because no, I wasn't aspiring to be a politician, I wouldn't say so. I was pursuing my degree and this happened. And my father thought I would be the best candidate, and I contested and he contested and I was the face of it. And you got married after? No, I got married 2008, so after the first term into the second term, and I didn't get بہت بڑی وزارت immediately. نہیں ملی مجھے. میں parliamentary secretary 2 سال I trained, I can't say I trained myself, but I got an opportunity to train myself, and then اسی department میں I was made Minister of State. So I think in some ways within the parliamentary domain I went through the ladder. اچھا، آپ اپنا سیاست کا سفر ہمیں آپ نے سمجھایا، لیکن ہنا ربانی کھر the politician اور according to your qualification ہنا ربانی کھر the technocrat. Okay, so initially 100% technocrat, and midway People's Party onwards politician plus technocrat. اچھا، ہماری سیاست نے جس طرح سے ڈکلائن لیا ہے اسی طرح سے ہمارا میڈیا بھی ڈکلائن کر گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے سوالات نہیں لوگ پوچھا کرتے کہ مطلب آپ کی قابلیت کیا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے، کیونکہ آپ کا جو مین فورٹے ہے وہ اکنامکس ہے، معاشیات. مطلب یو وینٹ ٹو ایمہرسٹ فار پوسٹ گریڈ، مطلب آپ کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. پھر جب آپ نے یہ منسٹری آپ کو ملی، اس کے بعد مطلب اس کے اوپر پھر ہمارے پاس وہ زلزلہ والا ٹائم تھا، اس کے اتنے سارے پیسے، اس کو ایک گریڈ میں لے کر آنا. ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دیٹ اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج اٹ؟ Okay, so without trying to take too much credit, I think I was, because of that technocratic اس technocratic approach کی وجہ سے، and because میرا economics کا background تھا، اور because یہ سب کچھ DFI جن کو ہم Development Financial Institutions کہتے ہیں، جو Asian Development Bank اور World Bank اور USAID اور DFID اور سب کی aid پاکستان میں بھرپور طریقے سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن پاکستان اس کو کس طرح مینیج کرتا ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور وہ جس طرح دیتے ہیں اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. سو میں اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹوڈنٹ گلوز پہن کے وہ برن دا مڈ نائٹ آئل، ساری یہ فریگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے، ہارمونائزیشن آف اسسٹنس کو لانے کے لیے، سو آل دیز تھنگس اس کے لٹریچر میں گئے. اور آئی تھنک ہم نے EAD کو کافی ٹھوس منسٹری بنانے کی کوشش کی کہ ہمارے کنٹرول میں رہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے اور ہم اس کو بہتر ایفیشینٹلی کر سکیں. لیکن یقیناً دیکھیں، میں آئی واز اے 25 to 27 year old، یہ اس وقت کی بات ہے، اینڈ جو سیکرٹریز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ 60 سال کے. سو کس طرح آپ اپنا جو آپ کہہ رہی ہیں میٹل منواتے ہیں؟ تھرو ہارڈ ورک، پیریڈ، دیٹس اٹ. اگر آپ نے اپنی بریف ان سے زیادہ پڑھی ہوگی، اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ان سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اگر آپ نے بیک گراؤنڈ ریڈنگ ان سے زیادہ کی ہوگی، اگر آپ کو اس فریم ورک کا، اس لٹریچر کا ان سے زیادہ پتا ہوگا، دین ایونچولی ہر کوئی ان سے زیادہ پتا تھا.
हिना को 100% इंसाफ. हिना ने कुछ सिखाया उनको? I think काफी कुछ सिखाया. अच्छा हिना, I don't know how to ask this in Urdu, but लेकिन हम we suffer from a perennial difficult economic situation जिससे हम कभी निकल नहीं पाते. Sometimes are good, sometimes are bad, but हमारे fundamentally मसला क्या है हमारी economics के साथ आपके हिसाब से? मतलब और common man के लिए जरा समझाइए. Okay, common man के लिए I think simply हम IMF के प्रोग्राम्स और उनकी जो फ्रेमवर्क है जिसमें ना यूके फॉलो करता है, ना यूएस फॉलो करता है, ना कोई यूरोपियन कंट्री फॉलो करता है, अगर उनका दिया हुआ दवाई हम सारे मुल्कों को दे दें, वो सारे मुल्क भी हमारी तरह ही फंक्शन करेंगे. लेकिन बेसिक अगर कुछ चेंज करना हो तो आप मतलब, क्योंकि आपको पता है फीस पाशा साहब हैं, अभी अब रजाक दाऊद साहब हैं, अब टैक्स कलेक्शन है, मुराद सईद ने 200 अरब इसके मुंह पे उसके मुंह पे मारने थे, वो पैसे आने थे, मतलब ये रेटरिक है. मतलब क्या ये पॉसिबल था पाकिस्तान के लिए किसी भी हद? ये जो सारा 200 अरब बड़ा का ड्रामा है ना, और ये जो गाड़ियां बेचने और भैंसे बेचने का ड्रामा है, आई थिंक उसमें आपको और मेरा कहना तो कुछ रहता नहीं है, बिकॉज हमने खुद उस ड्रामे को अनफोल्ड होते हुए देख लिया. सो ये है to keep Pakistan away from the real issues. What is the real issue? Over-regulation. What is the real issue? Lack of... It's not corruption? Corruption is a very big issue, but आपने corruption के नाम पे जो real issues है ना, इस वक्त आपकी economy is over-regulated. आपने giants, internal giants, which are not private sector, उनको इकोनॉमी के ओवर टेक करने की इजाजत दी हुई है. अच्छा, माशियात काफी ड्राई सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए जरा थोड़ा सा ऑडियंस को एंटरटेन भी करते हैं. और हम जाते जाते एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जाते हुए आपको दिखाएंगे हिना रब्बानी खैर साहिबा जब बोलती हैं पार्लियामेंट में तो वो कितनी तमीज से बोलती हैं, लेकिन कितनी दलील से बोलती हैं. जरा देखिए, ब्रेक लीजिए, फिर वापस आइए. मिस्टर स्पीकर, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के वजीर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि इंसाफ नहीं मिला इसलिए थप्पड़ मारा, गलत काम करें जाओ घसीटो, गिरबान से पकड़ के लाओ, तो आम आदमी गले कूचे में क्या करेगा? आई डू बिलीव यू ऑल्सो वांट टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. आई जस्ट वांट टू हैव योर पेशेंस टू अंडरस्टैंड कि मे बी हम भी शायद पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही काम करना चाहते हैं. एंड वेलकम बैक टू दस. हमारे साथ हैं द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी ग्रेसफुल, द वेरी टैलेंटेड हिना रब्बानी खैर साहिबा. अच्छा हिना, नाउ लेट्स कम टू एक टैलेंट होता है और एक हालात के साथ साथ तब्दील होना, क्योंकि आप एक वजारत से दूसरी वजारत में आपने कदम रखा, आप वजीर खारजा बनी. अब ये रेमंड डेविस वाला मामला था जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर रिज़ाइन किया. वो एक लंबी बहस चली कि रेमंड डेविस को जरदारी साहब ने बाहर भेजा, किसने बाहर भेजा, तो हमें भी पता है. मतलब ये थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए बताएं कि रेमंड डेविस वाले मामले में शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब इस्तीफा दिया, वो यू लाइक हैंड पिक्ड कि हाँ हिना को ले आओ? No, I don't think it was that simple. I think what happened was कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब हमारा मैं ये because ये सारे these become palace intrigues and I don't like palace intrigues or to talk about them. But जब हम हल्फ ले रहे थे तो उनकी कुर्सी भी आ जा रही थी, meaning उनको भी. But I believe the decision was taken कि उनको foreign minister नहीं बनाना और कोई और ministry देनी है, which he refused. He wanted to remain foreign minister. मैं हल्फ ले रही थी as the only minister of state for economic affairs and finance because मुझे बताया गया था कि आप कि आप मैं कोई अनइम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री की बड़ी वजारत नहीं लेना चाहती थी. मेरे लिए ये टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा एक चीज़ थी. एंड मतलब मेन स्ट्रीम में सही काम करना चाहती थी. सो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मुझे बताया गया था बिकॉज पार्लियामेंट में मेरी फाइनेंस में बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए आई एम द ओनली मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हल्फ उठाएगी. एंड आई डिड. तो फिर जब ये सारा हुआ तो फिर जब हम हल्फ लेके आप सलाम दुआ के लिए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, देन इट वाज एक्चुअली विस्पर्ड इन माय ईयर कि जी आपको हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं दे रहे, आपको अभी हम थोड़ी देर के लिए एंड जरदारी साहब के फॉरेन अफेयर्स में हम थोड़ी देर आपको पार्क कर रहे हैं. एंड आई वाज शॉक्ड. मेरे पास आई हैड 2 young kids. आई वाज ऑलरेडी ट्रैवलिंग टू मच. आई बिलीव कि मेरा फाइनेंस में एक बैकग्राउंड है, एक काम है और एक नो हाउ है, एक नॉलेज है. एंड ये चीज़ मेरे लिए इतनी नई इसलिए नहीं थी बिकॉज इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की वजह से मैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ विद ऑल कंट्रीज यूएस यूके एक्सेट्रा सारी करती थी, विच मेंट कि मैं हर दफा जब प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स इन मुल्कों के आए होते थे, so I was always in the room with our prime minister because I was managing the economic part of it. So एक थोड़ा सा बैकग्राउंड उस तरह था, but I was not keen to take it at all. To be fair, I was not. Yeah, I can say. किसने बाहर भेजा? ये तो हाथ मिस्ट्री सॉल्व करते हैं. I think नहीं है, मुझे बता दें जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब. मेरा एक रूल है जिंदगी में. I can tell you it wasn't जरदारी साहब. I can just tell you that much, right? नहीं, I don't know at all. And I think this drama about the
former and now the current foreign minister, and taking a stance on Raymond Davis, this is also quite dramatic. No, it wasn't. ये resignation उनका Raymond Davis के ऊपर नहीं था, as far as I know. Okay, के वजारत ना मिलने पे. Okay, and और उनको निकाला या change करने का वजूहात भी वो नहीं थी. आप because represent करती रही हैं पाकिस्तान को as a minister, तो आपको क्या लगता है what is wrong? 3 चीजें very quickly है ना, 3 चीजें what are wrong? Problem number 1 is कि ये हुकूमत ये नहीं, इट्स नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि वो काम क्या कर रही है या वो चेंज क्या कर रही है. वो कंसर्न है कि वो सोशल मीडिया को क्या मैनेज कर रही है और नैरेटिव क्या शेप कर रही है और किसको कितना गंदा कह रही है. जब सारी आपकी एफर्ट एक नेगेटिव एनर्जी पे लगी हो और तू मैं पे लगी हो और जो आपने मयार गंदगी का और गालियों का और बदतमीजी का ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट इतना गिरा दिया हो कि आप पार्लियामेंट का चैनल स्विच ना करना चाहें जब आपके बच्चे वहाँ बैठे हुए, बिकॉज जिस तरह की वहाँ लैंग्वेज और जिस तरह की वहाँ एक तरीका इस्तेमाल हो रहा है बाय देयर मिनिस्टर्स, इट्स अनहर्ड ऑफ. आपके वक्त में सऊदी अरेबिया की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, मतलब हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अब वो ताल्लुकात नहीं हैं. क्या ये हमारी ज्योग्राफिकल कोई लोकेशन में कोई फर्क पड़ा है, हमारी कोई वांट्स और नीड्स में फर्क पड़ा है, जैसे हम शायद जर्मनी के नेबर्स बन गए हैं जाके, क्या हुआ है आपके ख्याल? देखिए, आई थिंक ये जो बैलेंसिंग एक्ट एंड सना, यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज हमारे वक्त में सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे. जब हम ईरान के साथ ताल्लुकात को बिल्कुल फुल स्पीड अहेड पे लेके जा रहे थे, क्योंकि हम बैलेंसिंग एक्ट कर चुके थे और कर सकते थे. और फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अ बैलेंसिंग एक्ट एंड नोइंग दैट योर इंटरेस्ट आर परमानेंट, फ्रेंड्स आर नॉट. आपके इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं, आपने अपना इंटरेस्ट लेकिन वो रीअलाइन करना जरूरी होता है. इस वक्त ये हो रहा है कि मौकरी हो रही है और बेसिकली जिसका जो दिल चाहता है, किसी को गुस्सा आता है वो किसी मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट देता है. भाई आप क्या अपने घर को मैनेज करें या अपनी रिश्तेदारियां मैनेज करें, आप रियासत पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे के तौर पे, एक कैबिनेट मेंबर के तौर पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की कोई और पॉलिसी मैनेज करें. इसमें गुस्सा नहीं आ सकता. मुझे आई रिमेंबर वंस इन अल जज़ीरा इंटरव्यू somebody asked me, you know, one of the, and they said कि it must really you must get very angry when you hear the Americans, because आपको याद होगा उस वक्त Americans, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, हर जगह लीक्स होती थी अगेंस्ट पाकिस्तान. वी वर एट द फोरफ्रंट ऑफ बैड न्यूज ऑल द टाइम. It must make you very angry. And I said, you know, when you become the foreign minister, you leave anger behind. You have to leave anger outside the door. Nothing. You don't get angry. You just see कि कहाँ पे, and if you have to show anger, that has to be for a purpose. मतलब वो policy के तहत आपको anger दिखा सकते हैं. देखिए, first of all, मैं सबसे पहले शायद मैं इस चीज़ का I'm a realist, right? मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इस वक्त मोदी प्रेजेंट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम. लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर हिना रबानी खैर फॉरेन मिनिस्टर होती और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, तो जब ट्रंप ने सालसी का वादा किया था तो उसको हमारा वज़ीर आज़म आके ये कह के ना सेलिब्रेट करता कि मुझे लगता है हम 1992 का, और हम वहाँ पे खड़े हुए गजरे और गजरेले लेके उनको हार ना पहुँचा रहे होते कि ट्रंप ने कह दिया हम सालसी कर रहे हो. मेरे नज़र में दैट वाज अ मेजर 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 मिस्टेक. यूएन स्पीच इमरान खान, यू सी यू कैन मेक, एक तो ये हम यूएन स्पीचेस को जो अहमियत देते हैं ना, आपको कौन से मुल्क की यूएन की स्पीच याद है सना? कि आप बोलीविया की स्पीच सुनती हैं, आप अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर की, सो आप क्यों एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पूरी दुनिया सुन रही है और वो 30 मिनट आएं बाएं शाएं करके फिर आखिरी 10 मिनट, इट्स रिमार्केबल. यू नो, जब आप लोगों के टीवी वाले मुझे फोन करते कहते हैं अहम तरीन, एंड आई एम लाइक रियली, आई मीन आर यू लिविंग इन द रियल वर्ल्ड? मतलब हेलो, नॉक एनी सेंस. सो इट्स बेसिकली जब उन्होंने ऑफर किया, और हम इसको बिहाइंड क्लोज डोर्स रखते हैं, हम इसको बाहर ही ना आने देते, बिकॉज दिस ट्रिगर्ड ए रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया. और इंडिया शायद जो 3 साल में करता उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर कर दिया, और हम रोते धोते रह गए. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके बाद से जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया है, इट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड. कश्मीर हाईवे का नाम चेंज करके, या कौन से हाईवे का नाम चेंज करके आप श्रीनगर हाईवे लगा दें, आप इस्लामाबाद का नाम भी चेंज कर दें. इज दिस पॉलिसी? आप बाहर खड़े हो जाएं, पूरे लोग ऑफिस से छोड़ के आधा घंटा बाहर दे. आप क्या पाकिस्तानियों को कन्विंस करना है आपने कि कश्मीर इज इम्पोर्टेंट? You know, less the better. As I said, I don't want to get personal on anyone, and I think the level of incompetence, और ये जो इशू है ना वो ये है कि जिस बंदे ने कहा था कि मैं कॉम्पिटेंट लोग लगाऊंगा, उसके जब आप राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये मुझे पता है, मैंने अपने 20 साल ऑफ सियासत में इतनी इनकॉम्पिटेंस, इतनी डिस्प्ले पे
इनकॉम्पिटेंस को आप छुपा के रखते हैं, यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस फुल डिस्प्ले पर होते हैं, जो रोज आके एक नया crystal ball लेते हैं और बताते हैं कि क्या होगा. और फाल I mean, honestly, is this a comedy show that we're running? You're running the state of Pakistan. So it bothers you endlessly. It hurts you, it bothers you. और जो because anyone, देखें हम सारे एक दूसरे के ऊपर कभी कोई किसी को ट्रेटर कह देता है, कोई किसी को, हम सारे पाकिस्तानी हैं. आप में शायद मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान का दर्द हो, लेकिन मेरे दिल में भी थोड़ा सा दर्द होगा. वी हैव टू गिव ईच अदर दैट ना, कि हर किसी का. इट पेन्स यू बिकॉज मेरे नज़र में ये जो डिवीज़न इस मुल्क में कर दी गई है और ये जो इंस्टीट्यूशनल डिसरे इस मुल्क में कर दिया गया है, ये इरिट्रीवेबल होगा. और इसमें पाकिस्तान के 10 साल तक, आप 10 साल अगर बेहतरीन हुकूमत भी लेकर आ जाएं, इट टेक यू 10 years टू अनडू द डैमेज दिस मैन. फौज का कितना किरदार होता है हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि कहा जाता है बहुत होता है, और जाहिर है काबीना मतलब बेसिक सोर्स है जिससे आपकी बात मानी है. आपके वक्त में कितनी इन्वॉल्वमेंट थी? देखें, अगर आपको अपने इंस्टीट्यूशन में अपनी जगह पता है, अपना रोल पता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर पता है, ठीक है, तो और अगर आप कॉम्पिटेंस के साथ उस चीज को लॉजिक के साथ लोगों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंगेज भी कर सकते हैं, डिसएंगेज भी कर सकते हैं, यस भी कह सकते हैं एंड नो कहने का राइट भी रखते हैं, देन एवरीबडी इज obliged to listen to you. Okay, और हमने इस तरह के पंगे लिए. By पंगे I mean कि we had sometimes a different position, but we were able to engage, and sometimes we got into difficult positions. DG MI, and then he had been there as DG ISI, and then he had been but we could engage and we could sometimes argue and on things which were of interest to them also, जहाँ पे उनका एक right बनता है, which are security related issues. So when it comes to Afghanistan, India, उनकी obviously हो जाती है involvement. दूसरी चीज़ ये है कि foreign office में जाके मुझे ये भी पता चला कि foreign office is the only institution together with the Parliament of Pakistan which has the vision and the ability and the training to know कि पाकिस्तान को 20 साल आगे तक किस तरह प्रोटेक्ट करना है. No other institution in this country has been trained to do that. इसलिए अगर आप दूसरे institutions को ये जिम्मेवारी दे देंगे, उनकी विजन, उनकी ट्रेनिंग ये है कि वो अगले 2 साल का देखें, अगले 20 दिन का देखें, अगले 2 महीने का देखें. फॉरेन ऑफिस में ट्रेनिंग ये है कि आप अगले 2 साल से 20 साल से बल्कि 2 साल तक का पाकिस्तान का इंटरेस्ट करें. और आपको पता है, जब भी हमने कोई पोजीशन दी अपने दौर में जो शायद कॉन्ट्रडिक्ट करती थी और उसमें हम एक्सप्लेन कर सकते थे, बट हम क्योंकि इंस्टीट्यूशनली स्ट्रॉन्ग थे, हम वी वुड स्टैंड बाय एंड दे वुड आल्सो कम अराउंड. Each one of them was proven to be the correct position. But foreign policy was not the only problem. Problems और बहुत देखे हैं. हिना रबानी खैर साहिबा ने, हम बात करेंगे सलाला एयरबेस अटैक की, मेमो गेट की, उसामा बिन लादेन की. लगता है हिना रबानी खैर साहिबा अपने लिए लिखवा के लेकर आई थी कि तमाम मुश्किल जो है इनके दौर में आएंगी. बात करते हैं ब्रेक के बाद. And welcome back to Das. Hina Rabbani Khair Sahiba. Now I'm going to go very quickly because time is of essence. अच्छा, हिना बतौर FM फॉरेन मिनिस्टर आपने बहुत ही मुश्किल दौर देखा है. मतलब I mean I have immense respect कि आपने कैसे इसको किया है. Raymond Davis was one. Then SMQ का resignation was another. Then था His resignation preceded my coming. हाँ, okay. Then Osama bin Laden. Yes. OBL was found. Yes. फिर सलाला बेस पर अमरीकी अटैक. फिर मुल्की और गैर मुल्की सतह पर पाकिस्तान एक काफी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में था. हमारी मुल्क में क्या दुनिया में जगहसाई हो रही थी. ऑपोजिशन वाज एट लॉगरहेड्स विद यू. What was your tactic? How did you defend all of this? Okay, so interestingly, and I will say this very clearly, opposition अकेली हमारे सर पे नहीं थी, because हमारी जितनी पॉलिसी, अगर हम एनर्जी में कुछ नहीं कर सके, because every time आपको ये एक पॉलिसी बनाते थे वो निकल. So having said that, देखें आपने जो 2 चीजें मेंशन की ना सना, it gives me a great opportunity to tell you कि जब एक मुल्क कुछ सही कर रहा होता है और उसके साथ कुछ गलत होता है, तो वो किस तरह धड़ल्ले से खड़ा हो सकता है और कितनी आन के साथ खड़ा हो सकता है, कितनी इज्जत के साथ खड़ा हो सकता है. और एक मुल्क जब caught in the wrong place होता है तो वो किस तरह बेचारा डरा छुपा अपने आप को unable to explain itself, और किस तरह उसके ऊपर अटैक होता है जिसको वो डिफाइन नहीं कर सकता. रात में ऑपरेशन होता है. ये बात नहीं हुई कि सदर को पता चला. आपको कब पता चला ये बताएं. और सदर को पता था कि नहीं पता था, और फौज को नहीं पता था. मतलब ये बहुत एम्बिग्विटी है. एंड दैट एम्बिग्विटी मेरे ख्याल से आप और मैं मर जाएंगे, वो एम्बिग्विटी कभी खत्म नहीं होगी. ठीक है, बट आई कैन ओनली टेल यू व्हाट आई नो, राइट? एंड व्हाट आई नो इज वी नो दैट ओबामा पिक्चर कि ही वाज एक्चुअली following the operation. Of course he was following the operation. And when yes, the president जिनके हाँ हो रहा था उनको नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था, और जो करवा रहे थे उनको obviously पता था, right? पहले तो obviously showed कि the American
Americans did not trust you, right? We had good reasons not to trust them, and वो सारा एक सामने आ गया. दूसरी बात, और I think even more important बात, वो ये थी कि आप you were found in a place which was indefensible, क्योंकि एक पूरा ऑपरेशन 10 साल 11 साल का वहाँ पे हुआ उसामा बिन लादेन के लिए, और वो आपके उसमें मिला. सो क्लियरली एक इंटेलिजेंस फेलियर, एक एग्जैक्टली ऑल ऑफ दैट वी नो. वो आज जेल में, लेकिन इस तरह रिमेंबर दैट पाकिस्तान इस तरह, दिस इज हाउ यू प्रोटेक्ट नेशनल नेशंस इंटरेस्ट. हमें कितना प्रेशर आया कि आप शकील अफरीदी को रिलीज कर दें, राइट? पर उसको रिलीज करने का मकसद ये था कि जो भी कल स्पाई बनेगा किसी और का, एंड जबकि वो स्पाई उसामा बिन लादेन, जो इसमें हमारा भी इंटरेस्ट था कि वो निकल जाए, बनेगा, उसको रिलीज कराया जा सकता है. एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए हमने यूएस के साथ इतना बड़ा पंगा ले लिया. लेकिन वर्कर आपको वहां तक पहुंचा देता है, लेकिन आपकी एजेंसी को पता ही नहीं था. You see, it was an intelligence failure. How can you deny that? हमने कहा क्या were they opposing his, or were they facilitating him? Do you remember the Mullen statement? Are you complicit or are you incompetent? We said we choose incompetence because I think we were incompetent, right? Complicity. देखें, we were in the room by next morning 7 o'clock flight. I was to Islamabad, and वहाँ पे the military and of course the president, prime minister, the foreign minister, the foreign secretary. I was at that time minister of state for foreign affairs and not full minister, and foreign secretary and DJI. We were all in the room together, right? So we were told what we were told. हाँ, of course. कि जी उन लोगों को जब ऑपरेशन हो रहा था, उनको पता चला, उनको ये नहीं पता चला कि किस किस्म का ऑपरेशन हो रहा था, and then later on things got more streamlined in the sense we found out what was happening. So that is history. It's part of history. We will never be able to unravel that. Lekin Pakistan was caught in the wrong place, right? And much as we tried to defend ourselves, there was really nothing to give, right? Honorably give. And now oppose that to Salala, जिसमें 24 आपके लोग शहीद किए जाते हैं American forces से, ठीक है? And American and Afghan forces, so to speak. And we were supposed to be their partners, and we were again caught place. But उसके बाद हम क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि we were wronged and we are not the ones who had wronged, और हम कोई पकड़ी नहीं गए थे कुछ गलत करते हुए, बल्कि हमारे लोगों को शहीद किया गया था. एंड इसमें कई लोगों का व्यू था कि जी लेट इट गो, उनसे कोई अपॉलॉजी टाइप की मान के ना फॉरेन से जो भी वो कहें. एंड वी सेड नो, दिस इज अ रेड लाइन हैज टू बी ड्रॉन. एंड अगर एक मुल्क, that was all of us. I am never going to be the one taking credit, because I think, by the way, I think we worked rather well with the military, because you may have your differences of opinion, but you are a team because you are representing the country, and therefore I feel very embarrassed when this prime minister says फौज मेरे पीछे है. भाई फौज, आप फौज को क्यों खराब कर रहे हैं? You know, आप अपनी गवर्नेंस का बोझ उन पे, बिकॉज आप नहीं इम्प्लीकेट करते इंस्टीट्यूशंस को इस तरह की चीज़ों में. आई थिंक इट्स रॉन्ग. ओके, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज इट्स प्लेस. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज, सलाला पे हम खड़े हो गए. सलाला पे आई रिमेंबर उस वक्त का जो डिफेंस सेक्रेटरी था, आई बिलीव इट वाज पनेटा, he categorically said, let the foreign minister of Pakistan know, and let Pakistan know there will be no apology. And उस वक्त तक हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ने कहा था कि अपॉलॉजी के बगैर हम आगे नहीं चलेंगे. 3 महीने गुजर गए, हमने नेटो के रूट्स बंद कर दिए, हमने उनके साथ हर किस्म का सलाला बेस बंद कर दी, शमसी बेस बंद कर दी. And there were trips, and there was backdoor negotiation and front door negotiation, and all of it together, eventually the US had to change its position and offer a formal apology to Pakistan. And then, of course, because by that time we thought enough had been done, and we wanted to reopen the door, right? But we closed the door. Then Hillary, Kerry Lugar bill, all of that. Yes, I mean Kerry Lugar bill preceded it, but Hillary के साथ हमारी एक off the record negotiations, एक off the record जगह पे हुई, and and उससे पहले भी बहुत सारे लोग involved थे, बहुत सारा काम हुआ. So and उसमें military के लोगों ने भी काम किया, but it was a team effort. आसिफ जरदारी ने उधर एक पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी. उसको वो एक खत देता है अमेरिकनों को ये कहने के लिए, उनको खत देता है अमेरिकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो. अच्छा है ना, ये आपने खान साहब को सुना. अब ये जो इसकी डेट है, ये है मंसूर एजाज साहब का जब पहली दफा आर्टिकल आया, और मेमो गेट जैसा एक स्कैंडल खुला, और अगेन जिस तरह कोर्ट की बात कर रही थी, तो मियां साहब ने भी काला कोट पहन के वो कोर्ट पहुंच गए, और आप कह रही थी एक पेज पे थे. तो उस वक्त ये हुआ है. एंड लेट मी जस्ट क्विकली जस्ट गिव यू कि मैं आपको क्या पूछना चाह रही हूँ कि जरदारी साहब दुबई चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, रूमर मिल फैक्ट्री चल रही है कि हो गया है. अच्छा, हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर नजला गिरता है. मुझे याद है मंसूर एजाज का मैंने खुद इंटरव्यू किया, हुसैन हक्कानी साहब मेरे शो पे आके बोल के गए. ये तमाम तर चीजें हुई, और ये एक तो इमरान खान साहब को इस बात का इल्म कैसे था, या तो मंसूर एजाज को था,
या हुसैन हक्कानी को था, तो आपको क्यों लगता है कि इमरान खान को 4 दिन पहले पता? देखें सना, ये एक बहुत बड़ा जीता जागता, ये पूरा एपिसोड जो आप कह रहे हैं ना, सबूत है किस तरह इस कौम में गुमराह किया जाता है, एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव शेपिंग होती है, एक ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा दिया जाता है टू टेक अस अवे फ्रॉम द रियल इश्यूज। मैं जब कह रही हूँ कि हमारी ऑपरेशनल वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल थी और बहुत अच्छी थी, और ये मैं आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आवरसेल्व्स आल्सो कि डिस्पाइट एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग अराउंड अस, हमें पता था कि मुल्क के बेहतरी के लिए आपने जो चीजें करनी है लॉन्जेविटी के लिए, देखें सवात ऑपरेशन, एनएफसी अवार्ड, 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बलूचिस्तान आगाज हकूक, ये चीजें हैं जिससे पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त होती है। सो ये सारी, अब मंसूर एजाज की क्या, आप, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, बट व्हाट इज हिज रेपुटेशन, क्या किस आर्टिकल्स उसके बारे में क्या, मुल्की सलामती खतरे और मुल्क की सलामती खतरे में कौन दिलवा रहा है और किसकी हम गवाही ले रहे हैं? एक ऐसा बंदा जो कि you know who cannot be trusted with literally anything, जिसको the intelligence agencies of Pakistan खुद अपना enemy मानती थी, जिसने उनके बारे में और सबके बारे में, but suddenly he becomes the messiah and suddenly he's going to deliver। हुसैन हक्कानी ने खुद से ये किया था या जरदारी साहब की एमा पर किया था? नहीं, ये देखें, ये तो कभी प्रूव ही नहीं हुआ कि हुसैन हक्कानी ने कुछ किया। I'm not going to defend Hussain Haqqani, but all I'm saying is Memogate was nothing. Did it? What became of it, Sana? What became of it? That's my question to you कि Memogate इतना बड़ा जो जिसने 6 महीने पाकिस्तान में कुछ काम नहीं होने दिया। Hussain Haqqani is not part of Pakistan People's Party, neither is Farhan. Yeah, absolutely, and he's like, yes, देखें वो तो that's another story, but मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ जो Memogate का सारा तमाशा था, ये मंतकी अंजाम पे जब पहुंचा तो इसमें से क्या निकला? You know what came out of it? और क्या जिसने भी ये करवाया या किया, ये हम इस चीज की इजाजत देनी चाहिए इस मुल्क में कि 6 महीने जिसमें मुल्क में काम होना चाहिए, मुल्क में आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क में गवर्नमेंट को पॉलिसी, वो गवर्नमेंट इस तरह की चीजों के साथ डील करती रहे। लेकिन है ना, फिर ये जब हुआ, मतलब अगेन आप लोगों ने मुद्दत पूरी की, पीपल्स पार्टी ने मुद्दत पूरी की, मतलब ठीक है, वजीर आज़म, हाँ, विद 3 प्राइम मिनिस्टर, पहले वो गिलानी भी खत्म, फिर उनको भी, जी। तो मैं कह रही हूँ ये तमाम तो चीजें आपके हिस्से में आई हैं, आपकी पार्टी के, लेकिन अब जिस वक्त में हम खड़े हैं, अब ये मुल्क की सलामती खतरा, गद्दारी, करप्शन, जरदारी साहब के करप्शन के केसेस, और ये PDM, हिना रब्बानी खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, जाहिर है एक पार्टी पॉलिसी आपकी पॉलिसी होगी, लेकिन हिना रब्बानी खैर खुद क्या समझती है कि इससे कुछ निकलेगा, इसके कुछ नताइज हासिल हो सकते हैं, और क्या असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए, ये तो दिस इज द PDM फैसला, नॉट अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला, राइट? एंड आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना व्यू थ्रू द चेयरमैन एडिक्वेटली, यू नो, दे वेरी क्लियर, बट ये जो मुल्की सियासत के साथ तमाशा किया जा रहा है और जो ये पार्लियामेंट के साथ तमाशा खुद हुकूमत करिए, देखें एक बहुत अच्छा तरीका होता है, व्हेन यू वांट टू वीकन एन इंस्टीट्यूशन यू ब्रिंग द वीकेस्ट पर्सन। इमरान खान इज द वीकेस्ट लिंक, ही इज द एब्सोल्युटली वीकेस्ट लिंक जो बैसाखियों पे, सहारों पे चल रहे हैं, और वो उनको, एंड द आयरनी ऑफ द मैटर इज कि उनको पार्लियामेंट की इस्तेहकाक, पार्लियामेंट की जगह, पार्लियामेंट की इस मुल्क की लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए जो ज़रूरत है उस चीज़ का एहसास ही नहीं है। और अगर आपको इसका जीता जाता सबूत चाहिए तो आप उनकी खुद की परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देख लें, वो कितना आते हैं, और वो नाराज बच्चे की तरह अगर उनको कोई बोलते, देखें एक सियासतदान को, और स्पेशली एक प्राइम मिनिस्टर, हैज़ टू हैव अ वेरी लार्ज हार्ट एंड ही हैज़ टू स्टॉप बीइंग अ पेटी माइंडेड चाइल्ड। तो ये जो हो रहा है इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है? Absolutely, he is the person on because of। तो फिर ये नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये तो पीछे जो डोरे हिला रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम कहते हैं CIA ने पाकिस्तान में ये कर दिया, वो कर दिया। Who enables it? It's always a Pakistani who enables it. Which politician is enabling all of this to happen? Which politician? There's only one politician. His name is Imran Khan. And you're very sure. Right? I'm very sure. अच्छा, ओके, अब सवाल नंबर 10 और फिर बस है ना, अब आ जाए जरा ये इस पे बात कर लेते हैं। एक तो आपके मोतियों के हार, आपके बर्किन बैग्स, आपके जूते, आजकल मरियम नवाज पे भी बहुत नजला गिर रहा है, उन्होंने कौन से जूते पहने हैं, वो कितने के हैं, उनके शलवार कमीज कितने की है, और मतलब किसी को याद नहीं होगा कि कृष्णा साहब के साथ आपने किस तरह की मतलब बात की और किस तरह से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इंडिया में, बट एवरीबडी वांटेड टू टॉक अबाउट योर बैग्स। व्हाई? Because I'm very happy with that, to be fair, because you know I have the ability to ignore the nonsense. मेरे में अल्लाह ने कोई ऐसी काबिलियत रखी है कि मुझे जो चीज़ what brings you down, I don't even read, I don't go there, okay? So I'm very happy that the world was looking at the Birkin bag that I was carrying and let me do the visa agreement and the trade normalization with India. Okay, so it was almost like a smoke screen. I mean, if you look back at it, I'm like, you know, now, of course not, okay? And by the way, I have been dressed exactly the same way
as you know, for forever. Okay, Yeah. but India noticed it and therefore it became a thing. And Maryam ke saath jo ho raha hai, you think it's a woman thing? I think it's clearly a woman thing, but I don't take it very seriously because you know they take away nothing from me. It's not like मैं उनके ये कहने से मेरा focus कर जाता है. I don't look at what clothes I'm wearing and select मैं ये पे. You know, it's not. It's for me. It's just like a suit. I wear you know almost identical things every day to work. And you know this is my suit to work, right? And which bags I carry is my personal. अच्छा बिलावल साहब पार्टी को सही सिर्फ में लेके जा रहे I think he's shown maturity beyond any other politician. I think consistently अगर आप इमरान खान के दौर में अगर देख लें, अगर कोई consistent voice of reason, logic and longevity and democratic values and democratic principles आपको unconstrained and consistent नजर आएगी, that is the people's party. मुफाहमत नहीं है, मुफाहमत नहीं है. मुफाहमत तो नहीं. I think मुफाहमत is part of the value structure of people's party. On that note, thank you so much, Hina. That's all we have time for. Hina से सवाल बहुत ज़्यादा थे और of course Hina is so talented और इतना ज़्यादा इनके पास knowledge है. I want to be in the foreign office when you're there. But thank you for watching and please give us your feedback. This is Sana Bucha saying Assalamu alaikum.